Example number 16. The equation of two lines. So that equation of two lines, है ना? Two equations are given. A1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, है ना? For the general equation, condition is b1 b2 is not equal to 0. These are the equation of two straight lines. Done. So for these two straight lines, conditions are given. Two conditions are there. If these given two lines are parallel, है ना? If these given two lines are parallel, then what we can say? If these two equations are parallel, if condition is, है ना? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a1 by b1 equal to a2 by b2, और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, a1 by a2 equal to b1 by b2, दोनों सेम ही हुआ. If this condition is satisfied for these two equations, we can say these two lines, है ना? This equation represents two straight lines. So in this equation, if this condition is satisfied, we can say these two equation represents the parallel lines. Done. This is the condition for parallel lines in terms of general equation, है ना? इसके पहले हमने कंडीशन फाइंड की थी, if two lines are parallel lines, their slopes are equal. वो तो जनरली हमने बोला था, लेकिन ये जनरल इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन होगी मैथमेटिकली? दिस वन, है ना? ये दो कंडीशन नहीं है, एक ही कंडीशन है, डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है ना? a1/a2 किया और ये b1/b2 किया. इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो या फिर ये फॉर्म में याद रख सकते हो, है ना? एक ही कंडीशन है दोनों. सेकेंड वन, परपेंडिकुलर. if this condition is satisfied, we can say given two lines are perpendicular. Perpendicular if condition is a1 a2 plus b1 b2 equal to 0. If this condition satisfies for these two equations, we can say these two lines are perpendicular to each other. Done. 2 मार्क्स में आ सकता है या फिर अच्छा एग्जामिनर है तो 3 मार्क्स में आ सकता है. So now this is our given question. Now we start solution. Any idea कैसे इक्वेशन डिराइव करेंगे? First given line is a1x plus b1y plus c1 equal to 0. This is the general equation of line. Tell me slope of line m1 will be, क्या होगा? This is one equation of straight line, है ना? फॉर्मूला क्या था स्लोप का? हमने ऐसे लिखा था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. यहाँ पर हमने स्लोप डिफाइन किया था, किसी को याद होगा शायद? नो वन. माइनस a by b. Minus a by b is the slope of the line when equation is in general form. तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा? माइनस a1 by b1 minus a1 by b1. This is the slope of line 1. Now equation of line 2, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Here slope of line 2 m2, बोलो क्या होगा? नहीं आंसर देंगे. माइनस a2 by b2. ये हो गया स्लोप ऑफ लाइन 2. What we are given? Parallel line. So if two lines are parallel, if let's say this is line L1 and this one is line L2, so if line L1 is parallel to A2, बोलो क्या कंडीशन थी? पहले हमने डिस्कस किया हुआ है. If two lines are parallel lines, what we can write?
If two lines are parallel lines, their slopes are equal. So for parallel lines, slopes are equal. We can write m1 equal to m2. So m1 is the slope of line L1, and that is equal to minus a1 by b1. Minus a1 by b1 equal to m2. M2 is the slope of line L2, and that slope is minus a2 by b2. Minus a2 by b2. Therefore minus minus cancel. So our condition is a1 by b1 equal to a2 by b2. Done. So if two lines are parallel lines, condition is a1 by b1 equal to a2 by b2. ये प्रूव हो गया. Clear? Second condition for the perpendicular lines. What is the condition for perpendicular lines? If, बोलो, कोई बोलना चाहेगा? If, very good. If L1 is perpendicular to L2, if two lines are perpendicular lines, है ना, perpendicular. If two lines are perpendicular lines, what about the slope? Product of slope, that is m1 into m2 equal to minus 1. If two lines are perpendicular lines, the product of slope will be minus 1. ये होगा, ये perpendicular के लिए condition है, ये parallel line के लिए condition. So m1 into m2, what is m1? Minus a1 by b1 into m2. M2 is the slope of line L2, that is minus a2 by b2 equal to 1. Minus minus plus, so it's a1 a2 upon b1 b2 equal to 1. Sorry, equal to ये minus 1 है ना, minus 1. Therefore ये क्या होगा, a1 a2 equal to minus b1 b2. इसको ये साइड में ले लो, it's a1 a2 plus b1 b2 equal to 0. So this is the condition for two lines to be a parallel line. Sorry, perpendicular lines. Clear? A very important example is there. ये दोनों रिजल्ट है ना, if two lines are parallel lines तो ये कंडीशन होगी, if two lines are perpendicular lines तो ये कंडीशन होगी. एक्सरसाइज 10.3 में बारी बारी से यूज होने वाली. डन? समझ में आ गया सबको? Now next, our next concept is distance of a point from a line. है ना, किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना है. Distance of a point from a line. Distance of a point from a line. तो बोलो, कोई भी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस होता है? Suppose this is one point P, है ना, coordinates of this point P are suppose x1 y1. ये एक पॉइंट है और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं. चलो ये लाइन ले लेते हैं, दिस इज लाइन L. तो मुझे पॉइंट P का लाइन L से डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे? वी हैव टू कंसीडर, हाँ, वी हैव टू कंसीडर मिनिमम डिस्टेंस, है ना. सबसे पहला पॉइंट आपका आंसर क्या होना चाहिए? इफ यू वांट टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, दैट डिस्टेंस मस्ट बी अ मिनिमम डिस्टेंस, and that minimum distance is nothing but the perpendicular distance of that point from the line. Clear? तो कौन सा डिस्टेंस कंसीडर करेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा. डन? सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम द लाइन L D. क्योंकि डिस्टेंस तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा. तो कौन सा डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. व्हाट यू टू कंसीडर? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. That shortest distance is nothing but the perpendicular distance of that point from the line. ये डिस्टेंस होगा. तो ये डिस्टेंस कितना होगा वो आपको निकालना है. सो पहले इक्वेशन लिखते हैं, उसके बाद इसको डिराइव करते हैं. डन?
So let's say given point is point P whose coordinates are x1, y1, and the line L whose general equation is ax plus by plus c equal to 0. This is the given line L and this is the given point P. We have to find the distance of this point P from this line L. So that shortest distance is D. So that will be given by this formula. D equal to modulus of, है ना, these are the general points, है ना, coordinates of x and y. Put this x1 and y1 over here. So what we are getting, ax1 plus b y1 plus c upon square root of a square plus b square, a square plus b square. This is the formula to find the distance of a point from a line. कैसे लिखा समझ में आया? इसको डिराइव करना है ना. ये पॉइंट था, कौन सा पॉइंट P x1 y1. तो ये पॉइंट का ये लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना है. तो क्या करना है, x1 y1 की वैल्यू, ये x और y की वैल्यू है, वहां पर पुट करनी है. तो क्या होगा, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट. ये आपका डिस्टेंस मिलेगा. डन. तो इसको एक बार देख लेते थे कैसे आया, है ना. तो हमारे लिए ये डिस्टेंस याद रखना इजी हो जाएगा. तो इसको डिराइव करते हैं, है ना. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन समझ में आ जाएगा. चलो, तो नाउ प्रूफ. डायग्राम ड्रॉ करते हैं, है ना. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. सो लेट्स कंसीडर वन कार्टेशियन प्लेन, है ना. इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये जो लाइन एल है ना उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेंगे. लेट्स से दिस इज लाइन एल. डन. दिस इज लाइन एल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पास हो रही है. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन एल? ax प्लस बी वाई प्लस सी. लाइन तो सेम ही रहेगी. इसका इक्वेशन क्या है, यहाँ पे लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. We have to find distance of a point. Let's say this point is point P. Point P को यहाँ पर ले लेते हैं. This is our point P. Coordinates of this point P are x1, y1. Done. अब ये पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना है. तो डिस्टेंस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. So let's draw one perpendicular from this P. P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, है ना. ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया. Feet of perpendicular is d, sorry n, and this total distance is d. ये d निकालना है हमें. डन. यहाँ तक समझ में आया? है ना. ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया. वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम दिस लाइन L. सो परपेंडिकुलर इज Pn. ये डिस्टेंस हमारा पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस होगा. ये d हमें फाइंड करना है. एंड दिस इज द लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. डन. अभी देखो मैं ये दोनों पॉइंट निकाल रहा हूँ. कोई बताएगा मुझे कैसे फाइंड कर सकते हैं? लेट्स से दिस इज पॉइंट Q and this is point M. Now tell me which are the coordinates of this point M and Q. पहले पॉइंट Q बताओ मुझे. पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पॉइंट Q lies on x axis. Yes or no? Point Q lies on x axis. Any point which lies on x axis whose y coordinate is 0. So take y equal to 0. So what is the value of x? y 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा. So x will be minus c by a. Yes. So here x coordinate is minus c by a and y coordinate is 0. This is the equation of straight line ax plus by plus c equal to 0. आया समझ में, है ना. जैसे इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. ये इक्वेशन हमारी y इक्वल टू 0, जो x एक्सिस है उसको कट कर रहा है. तो पुट y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मिलेगी आपको c बाई a. सो y 0 x c बाई a. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q विल बी माइनस c बाई a, 0 होगा. डन. नाउ टेल मी
बाय सिमिलर प्रोसेस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, है ना। लाइन कौन सी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दिस लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस whose x coordinate is 0, so put x equal to 0 over here, so we are getting the value of y. So y will be minus c by b. So coordinates of this point m are x0 and y minus c by b. Is that clear? ये समझ में आया? पक्का है ना। मैंने q एंड m दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले, ये लाइन L और ये इंटरसेक्शन पॉइंट का यूज करके, ये लाइन L और ये लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट यूज करके। ये हमारी लाइन x एक्सिस है, उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। ये हमारी y एक्सिस है, उसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन यूज करके कोऑर्डिनेट्स निकाले। डन। नाउ कंसीडर वन ट्राइंगल, है ना। इसके अंदर हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। कौन सा ट्राइंगल, ये वाला। कौन सा ट्राइंगल हुआ, ट्राइंगल एम पी क्यू। कौन सा ट्राइंगल हुआ, इन ट्राइंगल एम पी क्यू। विजुअलाइज हो रहा है ट्राइंगल एम पी क्यू, ये वाला। डन। दिस इज अवर ट्राइंगल एम पी क्यू। नाउ कैन वी फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एम पी क्यू। बोलो तो क्या होगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एम पी क्यू। एरिया ऑफ ट्राइंगल एम पी क्यू, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। हियर बेस इज एम क्यू and what is the height of this triangle, pn. pn. Done. This is the area of triangle mpq. Yes or no? फॉर्मूला यूज किया, ये बेस हो गई, दिस इज बेस, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट। डन। सो यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एमपीक्यू। अब बोलो, ये एरिया ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एमपीक्यू व्हेन इट्स वर्टाइसेस आर गिवन, है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस आर गिवन। तो हम हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसका यूज करके निकाल सकते हैं, है ना। रेफरेंस में डायग्राम चाहिए। ये फॉर्मूला मैं यहाँ से फिर से लिख रहा हूँ, है ना। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल MPQ that is equal to 1/2 into MQ into PN. Now we have to find the area of triangle MPQ. उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया था, याद है किसी को। हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस आर गिवन। देखो मैं लिख रहा हूँ 1/2 मोड, है ना, ऐसे लिखा था। ये सपोज x1 y1 है, ये सपोज x2 y2, ये तो x1 y1 ही रखना पड़ेगा, और x3 y3 है। तो क्या था, x1 लेते थे, y2 माइनस y3 करते थे, x2 लेते थे, y3 माइनस y2 करते थे, ऐसे करते थे ना। सो 1/2 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 x1, तो डिफरेंस कौन सा लेना है, y1 माइनस 0, y1 माइनस 0 प्लस ये हो गया। उसके बाद ये x1, x1, x1 तो क्या होगा, 0 माइनस माइनस c by b, so it's a 0 plus c by b, so it's a x1 into c by b प्लस ये x1 हो गया। उसके बाद माइनस c by a, तो ये माइनस होगा माइनस c by a, तो माइनस c by b माइनस y1 माइनस c by b माइनस y1 मोड ओवर। डन। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल
MPQ। ये फॉर्मूला सबको याद आ गया? यस। So this is equal to 1/2 MQ 1/2 MQ। अब बोलो MQ कैसे निकालेंगे? ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके MQ निकालेंगे, है ना? MQ is the length of the line segment MQ, and that length of line segment MQ is nothing but the distance between these 2 point M and Q। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायर रूट में होता है 0 माइनस c माइनस ए होल स्क्वेयर। सो 0 माइनस माइनस प्लस c बाई ए होल स्क्वेयर, तो वो होगा c स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, है ना? 0 माइनस माइनस ए प्लस माइनस c बाई बी माइनस 0, तो माइनस c बाई बी होल स्क्वेयर, तो दैट विल बी c स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर। तो ये डिस्टेंस हो गया ये दोनों पॉइंट के बीच में। इनटू Pn। व्हाट इज Pn? Pn इज अवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमें निकालना है। सो इनटू d, ये d हमें फाइंड करना है और ये लेके आना है। क्लियर? सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर क्या होगा देखो, 1/2 दिस वन 0 इंटू ये 0, दिस वन c बाई बी x1, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस c स्क्वेयर बाई ए बी, अगेन माइनस माइनस प्लस c बाई ए y1 मोड इक्वल टू ये 1/2 इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ये c स्क्वेयर बार ले लो, है ना? तो c स्क्वेयर बार आएगा तो क्या होगा 1/a² प्लस 1/b² और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ऊपर आएगा a² प्लस b² और नीचे दोनों का मल्टीप्लीकेशन a²b² वो बाहर आ जाएगा, है ना? तो अंदर सिर्फ इतना ही बचेगा, बाहर ये c² आया तो c और a²b² बाहर आया तो ab टर्न इनटू d। ये समझ में आया? यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, ये 1 बचेगा। डन। नाउ हियर we can take this c common and here we are taking ab common और ये 1/2 कट, so taking c upon ab common, तो ये c चला गया और यहाँ से ab लेंगे तो a ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर आएगा ax1 प्लस एक c कॉमन लिया ab कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा c, यहाँ से c कॉमन ab डिनोमीटर में से लिया तो b बचेगा, तो by1 इक्वल टू ये c अपॉन ab और ये था स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² अपॉन 1 इंटू डी। सी अपॉन ए बी कट, डी को ऐसे ही रखेंगे, इसको डिनोमीटर में लाएंगे, तो डी विल बी मोड ax1 प्लस by1 प्लस सी, और ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है क्योंकि स्क्वायर रूट में है, तो इट्स a² प्लस b²। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम द लाइन L। परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी देयर। क्लियर? है ना? तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला कैसे आया वो मैंने आपको डिराइव करके दिखाया, तो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करना वो है, वो आप शायद भूल गए होंगे, तो अगले जो लेक्चर है उसको रिवाइज कर दो। डन। तो ये था डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। डन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ही होगा, है ना? क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन लेंगे तो दोनों के लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 0। तो कंसीडर ही नहीं करना है। तो डिस्टेंस कौन सी लाइन के बीच के फाइंड कर सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ही होगा, है ना? पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन विल बी 0, वो तो 0 हो जाएगा।
तो जब भी दो लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो दोनों लाइन आपको जो गिवन होगी वो कौन सी होगी, पैरेलल लाइन से होंगी। डन। सो यू हैव टू कंसीडर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो सपोज ऐसे दो पैरेलल लाइन, दिस इज लाइन L1 and this is line L2. Two parallel lines are there and we have to find the distance between these two lines. तो distance between two line वो भी क्या होगा, shortest distance between these two line, और वो होगा perpendicular distance। डन। perpendicular distance between two line उसको हम बोलेंगे D। so let's say two equations है ना, two equations of line, equation of line suppose L1, or equation may be given in general form or it may be given in slope intercept form। तो फर्स्ट कंसीडर करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सपोज इक्वेशन ऑफ दिस पैरेलल लाइंस आर गिवन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया है, बोथ लाइंस आर पैरेलल लाइंस, है ना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो है लेकिन दोनों कैसी लाइन है, पैरेलल लाइंस। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दोनों लाइन का इक्वेशन क्या होगा, जैसे होगा दोनों का स्लोप इक्वल होगा। सो y इक्वल टू mx प्लस c1, ये होगा y इक्वल टू mx प्लस c2। स्लोप ऑफ दिस टू लाइंस आर इक्वल, है ना। इसका भी स्लोप m होगा, इसका भी स्लोप m होगा। क्यों, बिकॉज गिवन टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस। इफ टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस their slope will be equal, so slopes are equal, only y intercept will be different। so these are the equation of two lines। now distance between these two parallel line is given by this equation। इसको बाद में डिराइव करते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। so distance between these two parallel lines is given by mod c1 minus c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। ये डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच का, है ना। ये जो डिफरेंट y इंटरसेप्ट है ना उसका डिफरेंस का मॉड्यूलेशन अपॉन 1 अपॉन m स्क्वायर। डन। ये फर्स्ट केस था। इफ टू गिवन पैरेलल लाइंस आर गिवन इन slope intercept form, maybe sometimes these two parallel lines will be given in general form। if two given parallel lines are in general form, then what is the formula to find the distance between two parallel lines? so parallel line कैसे फॉर्म में होगी, it's ax plus by plus c1 इक्वल टू 0, है ना। इसी y इंटरसेप्ट चेंज होगा, स्लोप सेम रहेगा, माइनस ए बाई बी इसका स्लोप है, और दूसरी जो लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस c2 इसका स्लोप भी देखो माइनस ए बाई बी, इसका भी स्लोप माइनस ए बाई बी। these two lines are parallel lines। so ये केस में सपोज आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो डिस्टेंस आपका रहेगा d इक्वल टू मोड सेम c1 माइनस c2 अपॉन, और ये m पता है हमें, है ना। m क्या था, स्लोप माइनस ए बाई बी, तो यहाँ पर रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डन। ये दो फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कैसे आते हैं। फॉर्मूला याद रह जाएंगे, है ना। डेरिवेशन देख लो फटाफट। चलो ये मैं सिर्फ ये दिखाऊंगा, टेक्स्ट बुक के अंदर आपको दिया हुआ है कि आप ये खुद से डिराइव कर पाएंगे, है ना। कुछ नहीं है, सेम प्रोसीजर। देखो करना क्या है, डायग्राम टू इक्वेशंस y इक्वल टू mx प्लस c1, y इक्वल टू mx प्लस c2, पॉजिटिव स्लोप एंड टू डिफरेंट y इंटरसेक्ट्स आर देयर c1 एंड c2। तो ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, टू पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है ना। तो ये पहली लाइन, ये हमारी हो गई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, इसका स्लोप m है और ये जो इंटरसेप्ट है ना वो c1 है। और दूसरी पैरेलल लाइन इसके साथ में यहाँ पर होगी ये, दिस इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। ये जो डिस्टेंस होगा ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये c2 होगा, ये c1, ये कोऑर्डिनेट 0 c1, ये कोऑर्डिनेट 0 c2, जैसे होगा। डन।
और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, है ना। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट और ये यहाँ पर एक पॉइंट ले लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। ये दोनों लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये डिस्टेंस होगा, यस और नो। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ वन पॉइंट, है ना। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस मिलेगा। तो मुझे ये पॉइंट निकालना है, तो ये पॉइंट मिलेगा मुझे, है ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू mx प्लस c1 intersection point with the x axis where y equal to 0, put y equal to 0, y equal to mx plus c1, एक लाइन ये है और एक लाइन दूसरी है y equal to 0। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, y 0 पुट करो यहाँ पर, so 0 equal to mx plus c1, so our x will be minus c1 by m, so this intersection point क्या होगा, minus c1 by m and y 0। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए क्या, माइनस सी वन बाई एम 0, यस और नो। ये समझ में आ गया, ये मेन कॉन्सेप्ट है ना, माइनस सी वन बाई एम 0। अभी आपको ये पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है, वो सबको आता है ना। डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, लास्ट लास्ट थियरी में फाइंड किया ना, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे होगा, देखो ये लाइन, इसको हम जनरल फॉर्म में लिखे क्योंकि हमें जनरल फॉर्म में पता है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, इसको जनरल फॉर्म में लिखे तो क्या होगा, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0, ये लाइन। और पॉइंट कौन सा है, पॉइंट इज माइनस सी वन बाई एम 0। तो ये पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, क्या होगा, d इक्वल टू, ऐसे लिखा था ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और x1 y1 से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस क्या था, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला यूज करते थे। तो ये x1 है और ये y1 है, ये यहाँ पर पुट करना होगा, ये यहाँ पर पुट करना होगा, डन। सो दिस विल बी m इंटू माइनस सी वन बाई एम माइनस वाई इंटू 0 प्लस सी टू अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो ये होगा एम स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस 1, डन। तो दिस इज द डिस्टेंस d, एम कट, तो ये हो गया माइनस सी वन प्लस सी टू, तो सी टू माइनस सी वन, ये मोड में है तो सी वन माइनस सी टू करो या फिर सी टू माइनस सी वन करो, सेम रहेगा, अपॉन दिस वन स्क्वेयर रूट ऑफ एम स्क्वेयर प्लस 1, फॉर्मूला डिराइव्ड, क्लियर।